Hello everyone, I'm Shivani. Welcome back to my channel. Today we are going to do the questions and answers of How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. The video is in English and Hindi, as all my videos are. I've already made 2 more videos for the explanation and poetic devices of this poem. Please check the links in the description. The first question of the poem is, does dying really rhyme with lion? No, dying doesn't really rhyme with lion. That's why the poet has used the word dying to rhyme it with lion. क्या डाइंग के साथ लायन राइम करता है? नहीं, डाइंग के साथ लायन राइम नहीं करता है, इसीलिए पोएट ने डाइन वर्ड का इस्तेमाल किया है जिससे कि वो लायन के साथ राइम करे. Now we come to the second question. According to the poet, how can you identify the lion and the tiger? According to the poet, if you see a large and tawny beast in the jungles of the east moving towards you, and when its loud roar makes you die with fear, then you can be sure it's an Asian lion. Whereas a Bengal tiger has black stripes on its yellow skin, you can identify it as it starts ईटिंग यू. आप लायन और टाइगर में कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दोनों जानवरों को? तो पोइट के अकॉर्डिंगली अगर आपको ईस्ट के जंगल में एक बहुत बड़ा जानवर, ब्राउन एंड येलो कलर का जानवर दिखे जो कि आपको देख के आपकी तरफ इतने ज़ोर से दहाड़ता हुआ आए कि आप बिल्कुल डर के मारे मर जाएं, तो वो एशियन लायन है. और अगर आपको एक ऐसा जानवर दिखे जिसके येलो स्किन पर ब्लैक धारियाँ हों, स्ट्राइप्स हों, और वो आपको खाने लगे, तो आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं कि वो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है. Now we come to the third question. Do you think the words leapt and lep in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? No, the words leapt and lep are not spelled correctly. The correct spellings of leapt is L-E-A-P-T and lep or leap is L-E-A-P. The poet has taken the liberty of changing the spellings of the words to maintain the rhyme and rhythm of the poem. Moreover, these words resemble the word leopard. क्या आपको लगता है कि लेफ्ट और लेप के स्पेलिंग्स पोइट ने करेक्टली लिखे हैं? और ऐसे स्पेलिंग्स उन्होंने क्यों यूज़ करे हैं? नहीं, इन वर्ड्स के स्पेलिंग अलग हैं. लेफ्ट का स्पेलिंग L-E-A-P-T होता है और लीप का स्पेलिंग L-E-A-P होता है. पोइट्स के पास पोइटिक लाइसेंस होता है जिसके कारण वो स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हैं जिससे वर्ड्स पोएम में अच्छे से राइम करें और रिदम लाएं. इसीलिए पोइट ने भी इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया है. इसके अलावा ये वर्ड्स लेपर्ड को भी रिजेंबल करते हैं. Now we come to the next question. Look at the line, a novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? A novice might nonplus can be written correctly as a novice might be nonplussed or a novice might get nonplussed. Poet has used poetic license to take the liberty of changing the spelling to rhyme nonplus with thus. Therefore, the poet's incorrect line is better as it helps in maintaining the rhyme of the poem. A novice might nonplus, इस लाइन को आप करेक्टली कैसे लिख सकते हैं? और ये लाइन पोम में कैसे बेटर लग रहा है? ये बिकॉज दिस इज़ एन इनकरेक्ट लाइन, ये इनकरेक्ट लाइन है. अ नॉविस माइट नॉन प्लस को हम करेक्टली अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस्ड और अ नॉविस माइट गेट नॉन प्लस्ड लिख सकते हैं. और इसमें पोइट ने अपना पोइटिक लाइसेंस यूज़ किया है और जिससे कि पोइट को लिबर्टी मिलती है स्पेलिंग चेंज करने के लिए. और यहाँ उन्होंने नॉन प्लस को 10 के साथ राइम कराया है, इसलिए ये बेटर भी लग रहा है ये लाइन पोएम.
पोएट जब अपने हिसाब से स्पेलिंग्स चेंज करते हैं राइम कराने के लिए तो उसे पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है. Now let's look at some extra questions. In the first stanza, which animal is the poet talking about, and how can you recognize the animal, and where do you find these animals? The poet talks about or tells us about an Asian lion found in the jungles of the East. She says if it's a large animal with tawny or yellowish brown skin that comes towards you, roaring so loudly that you die with fear, then it's an Asian lion. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट किस एनिमल की बात कर रही हैं और आप इस एनिमल को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं और ये कहाँ पाया जाता है. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एशियन लायन की बात कर रही हैं और यह एनिमल ईस्ट के जंगल में पाया जाता है. वो कहते अगर आपकी तरफ एक बहुत बड़ा लार्ज येलोइश ब्राउन कलर का एनिमल दहाड़ते हुए आता है और उसकी दहाड़ सुनकर आप मर जाते हैं तो वो ज़रूर एशियन लायन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज़ येलो स्किन विद ब्लैक स्ट्राइप्स, व्हाट डज शी कॉल इट एंड वाई? The Royal Bengal tiger has a yellow skin with black stripes. She calls it a noble beast because it kills animals only when it is hungry. It doesn't kill animals for pleasure. कौन सा एनिमल है जिसका येलो स्किन के ऊपर ब्लैक धारियाँ होती है और पोएट उसको किस नाम से बुलाती हैं? रॉयल बंगाल टाइगर का येलो स्किन होता है जिसके ऊपर ब्लैक धारियाँ होती हैं और वो उसे एक नोबल जानवर बोलती हैं क्योंकि ये जानवर सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए एनिमल्स को मारता है. ये प्लेजर के लिए एनिमल्स को नहीं मारता है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ लेपर्ड? A leopard has black spots on its skin and it leaps or jumps on you. Even if you cry, it will not leave you but continue attacking you by jumping on you. आप लेपर्ड या तेंदुए को कैसे पहचान सकते हैं? तेंदुए के स्किन के ऊपर काले धब्बे होते हैं और वो आपको देखते ही आप पर जंप करेगा या लीप करेगा और आप अगर रोएंगे भी तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आप पर अटैक करता रहेगा, जंप करते हुए आपके ऊपर अटैक करता रहेगा. Do you think the bear is a friendly animal as it is known for giving bear hugs? No, a bear is not a friendly animal. It does not give a hug affectionately. But that is how it kills its prey by holding it very tightly. क्या आपको लगता है कि भालू एक फ्रेंडली जानवर है क्योंकि ये बेर हग देने के लिए जाना जाता है? भालू तो बिल्कुल भी फ्रेंडली जानवर नहीं है. यह आपको हग तो ज़रूर देता है पर प्यार से हग नहीं देता है बल्कि मारने के लिए. ये अपने शिकार को बहुत टाइटली जकड़ लेता है किल करने के लिए. हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब द हाइना एंड द क्रोकोडाइल? द पोएट सेज द हाइना smiles when it kills its prey as if it is amused to kill its prey. Actually, it's not smiling, but its face looks as if it is smiling, and it produces sounds that resemble human laughter. She says a crocodile cries while killing its prey. It looks like the crocodile is very sad by its own act. It sheds tears not because it is sad, but because their tear glands get activated during that time. पोएट किस तरह हाइना और क्रोकोडाइल को डिस्क्राइब कर रही हैं? पोएट कहती हैं कि हाइना या लकड़बग्गा अपने शिकार को मारते वक्त स्माइल करता है जैसे कि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, पर एक्चुअली लकड़बग्गा स्माइल नहीं करता है, उसका फेस ही वैसा दिखता है और ऐसी आवाज़ें निकालता है जो कि मनुष्य की हंसी के साथ बहुत रिजेंबल करता है. और वो आगे कहती हैं कि मगरमच्छ या क्रोकोडाइल अपने प्रे को या शिकार को मारते वक्त आंसू बहाता है. ऐसा लगता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं है. उस समय उसके टेयर ग्लैंड्स या आंसू के ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आंसू बहने लगते हैं अपने आप. Question number 10. Why does the poet say, if there is nothing on the tree, 'tis the chameleon on the tree? The poet says that because a chameleon has the ability to change its color and camouflage itself with the background
then it becomes very difficult to spot it. That's the reason why the poet has said or used the line, if there's nothing on the tree, 'tis the chameleon on the tree. तो पोइट क्यों कहती है अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखता है या पेड़ पर कुछ नहीं है तो ज़रूर वहाँ chameleon या गिरगिट होगा. पोइट ऐसा कहती हैं क्योंकि जो गिरगिट है उसके अंदर अपने रंग बदलने की क्षमता होती है. वो अपने को अपने बैकग्राउंड के साथ के कलर के हिसाब से अपने को चेंज कर लेता है. इसलिए हमें कुछ भी नहीं दिखता है पेड़ पर. और जब पेड़ पर कुछ नहीं होता है तो पोइट कहती हैं कि ज़रूर वहाँ गिरगिट या chameleon होगा. So that brings us to the end of the lesson. Hope you'll find the questions and answers very useful. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Share the video with your friends. Give it a like. Send your comments. I'll be looking forward to them. Very soon I'll come up with another video. Till then, take care. Goodbye.